اس کے بازو میں عمران جمیل صاحب ہیں، ایک معلم ہیں، گرچہ بظاہر نظر آتے ہیں کہ چلنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کا حوصلہ ایسا ہے کہ وہ پیروں کا محتاج نہیں ہے۔ تعلیمی جلسہ ہو یا سماجی عنوان پہ کہیں بات ہوتی ہو، چاہے 2 لوگ جمع رہیں چاہے 2000 لوگوں کا مجمع رہے، سر وہاں موجود رہتے ہیں۔ ہمارے ان تمام مہمانان کے تعارف کے بعد رسم گلپوشی میں یہاں موقوف کرتے ہوئے وہ سلسلہ بعد میں شروع کیا جائے گا۔ مقرر اول کی حیثیت سے میں نے اپنا تعارف جہاں ختم کیا ہے وہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ جناب عمران جمیل صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ افتخار عارف نے ایک شعر کہا تھا، بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے، بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے، ہماری پہلی گواہی گھروں سے آئی ہے۔ جناب عمران جمیل صاحب آج کی اس مجلس میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیرا انگلش میڈیم اور نوری اکیڈمی کے توسط سے آج کا یہ جو بامقصد پروگرام ہے، فروغ علم اور جدید ٹیکنالوجی، اس پروگرام کے صدر محترم سید امین القادری صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما تمامی معزز و محترم مہمانان اکرام، اپنے سبجیکٹ کے تعلق سے کچھ کہنے سے قبل میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب مالیگاؤں شہر کے تعلیمی منظر نامے پر نظر دوڑاتے ہیں اخبارات کے ذریعے، مختلف تقاریب کے ذریعے، تو ہم لوگ یہ پاتے ہیں کہ بہت ساری شخصیات، علم و ادب سے شغف رکھنے والے لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق جو تو باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ یہ شہر کے لیے بہت ہی خوشائن بات ہے۔ پچھلے دنوں محترم عطا الرحمن نوری صاحب سے جو تو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ویسے تو ہم سبھی شامنامہ کے قاری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مضامین کس قدر بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے اور کس طریقے سے تسلسل کے ساتھ وہ جن موضوعات کے تحت آتے ہیں باقاعدہ اپنی چھاپ چھوڑ کر جاتے ہیں ذہنوں پر۔ نثری ادب کی ایک نشست میں جب آپ کی صدارت تھی، وہاں آپ کو سننے کا اتفاق ہوا، میں نے انہیں یہ پایا اپنی روبرو ملاقات میں، نہایت ہی شریف النفس، حلیم الطبع، بہت ہی فرما بردار، کم گو، لیکن جب بولتے ہیں تو موضوع کے تحت بے تکان بولتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کی اور اپنے ہم عصروں کے بھی بہت ہی زیادہ عزت کرنے والے۔ عطا صاحب کبھی خاموش بیٹھے نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے، ایم اے بی ایڈ جرنلزم، اور آپ میرے خیال سے فارماسسٹ بھی ہیں، تو یہ تمام شعبوں کو کور کرتے ہوئے، جرنلزم کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، اب آپ نے اپنی جو کچھ صلاحیت ہے، جو کچھ تجربات ہیں یو پی ایس سی ایگزام کے تعلق سے یا کے جی سے پی جی تک، ہم لوگ جو تو اپنی اپنی اسکولوں میں ہمارے بچے جو تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، باقاعدہ جو رسمی تعلیم ہے اس کا حصول جاری ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، یا اسکولوں میں جاتے ہیں تو لیکن سائڈ بائی سائڈ ان کو کچھ اس طرح کا ایجوکیشن ملنا چاہیے جس کی وجہ سے جب وہ موجودہ دور میں اپ گریڈیشن کی سمتوں میں جب جاتے ہیں تو ان کے پاس جو تو تعلیم کے نام سے، تدریس کے نام سے، معلومات کے نام سے، نالج کے نام سے ایک ایسا اتھا سمندر ہونا چاہیے جس کی آج کے موجودہ دور میں جو تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی چیز کا آپ نے بیڑا اٹھایا۔ میں سب سے پہلے اس شخص کو اور ان کے سرپرستوں کو، خاص طور سے ہیرا اکیڈمی کے روح رواں عالی جناب انتہائی معزز اور محترم سید امین القادری صاحب اور ان کو رفقائے کار کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اب میں آتا ہوں، آپ نے جو مجھے جو موضوع تجویز کیا تھا،
यूपीएससी एग्जाम के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा ना कहते हुए कुछ ऐसी बातें ज़रूर मैं आप तमाम लोगों के सामने मैं लाना चाहूँगा। शहर में 10-20 सालों से जिस तरह का माहौल रहा है, हम जिन असातिज़ा से मिलते रहे हैं, हर असातिज़ा अपने मज़ामीन के ताल्लुक से इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे कि जब महाराष्ट्र लेवल तक की जब ट्रेनिंग से रहती है तो यहाँ के आरपीस का और यहाँ के ट्रेनिंग का नाम हुआ करता है, और ये साबित शुदा बात कह रहा हूँ मैं। लेकिन जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ताल्लुक से कुछ बातें आती थी, बिलखुसूस यूपीएससी के ताल्लुक से, तो बहुत सारे ऐसा मिथ इसके ताल्लुक से पाया जाता था। एक तरह की जैसे लगता था कि ये कोई ऐसा एग्जाम है जिसको हम लोग जो तो पास नहीं कर सकते, हम लोग उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे मेरे ही हम उम्र, मुझसे बड़े और मेरे बाद के लोग बावजूद बेपनाह काबिलियत रखने के उनको वैसी रहनुमाई नहीं मिली जिस तरह के दौर में आज का बच्चा जी रहा है, आज का जो है तो ग्रेजुएट जी रहा है, खास तौर से मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन उन दिनों इस तरह के कोई भी रहनुमाई का ना कोई इंडिविजुअल असातिज़ा के जरिए ना किसी एकेडमी के जरिए ऐसा कुछ भी इंतजाम नहीं था। बहुत सारे असातिज़ा के पास उस तरह का कैलिबर ही नहीं था, या अगर था भी तो शायद मैं नहीं जानता हूं। इस एग्जाम के ताल्लुक से जब कभी भी इन दिनों गुज़िश्ता 10-12 सालों से जब से शाह फैसल साहब ने, और खास तौर से ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात रही कि फख्र मालेगांव कैसर अब्दुल हक साहब ने जब मेरे ख्याल से 33वां या 37वां रैंक हासिल किया 2007 में, तो वहां से इसके ताल्लुक से न सिर्फ मालेगांव शहर में बल्कि महाराष्ट्र में भी एक तरह से बेदारी की लहर आई, और अलग अलग ट्रस्ट ने, अलग अलग अदारों ने, बॉम्बे में, पुणे में, अब यहाँ पर मालेगांव में भी इसके ताल्लुक से जो तो बीड़ा उठाया और तलबा की प्रॉपर चैनल के जरिए रहनुमाई करने की जो तो आप लोगों ने कमर कस ली, और धीरे धीरे एक बेहतरीन इस तरह की फिजा साजगार होती गई कि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा दूर की चीज नहीं लगने लगा, बल्कि इसको हर वो तालिब इल्म जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक मिजाज बना लेता है, उसको एग्जाम आसान लगने लगा। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में 2 तरह के पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज, ये प्रीलिम एग्जाम, और प्रीलिम के ताल्लुक से कह रहा हूँ खास तौर पे, और सी सेट का जो पेपर होता है दूसरा पेपर, ये दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। जनरल स्टडीज में 100 मार्क्स का पेपर होता है, और सी सेट जो है तो उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। दोनों के क्वालिफाइंग मार्क्स जो है तो 200 होती है, कुल मिला के 400। सीसेट जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करने के लिए होता है, और जनरल स्टडीज की मार्क्स का जो तो शुमार होता है। एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हर साल, तकरीबन 900 से 1200 तलबा पूरे हिंदुस्तान भर से अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए, अलग अलग लैंग्वेजेस की जो तो नुमाइंदगी करते हुए, जो जिस लैंग्वेज का जो तो उसने एजुकेशन हासिल किया है, इसमें अपीयर होते हैं। लेकिन हर साल सिर्फ और सिर्फ 900 से लेके 1200 के दरमियान ही इनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि इतनी सीट्स होती हैं। यहाँ पे इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं सिर्फ तलबा से और असातिज़ा से यही कहूँगा कि आप इस वक्त से ही तलबा की इस तरह से रहनुमाई कीजिए कि इसमें कोर्स की तफसीलात बेशक यूट्यूब पर मौजूद है। खासतौर से अताउर रहमान साहब का जो यूट्यूब में उनके जो लेक्चर सीरीज जो शुरू है उसमें तो मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसी दुश्वारियां हैं कि जब कभी भी हम लोग जब किसी टॉपर का या कोई रैंक जो तो गेट करता है, हासिल करता है, उसके इंटरव्यू को जब देखते हैं तो हर एक ने यही कहा है कि द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, फ्रंटलाइन, इस तरह की जितने मैगजीन्स और वीकली न्यूज़पेपर भी, और खास तौर से डेली, इसकी ही बात होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मालेगांव शहर में जो तो प्रिंट की शक्ल में वो अखबार आता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि पीडीएफ की शक्ल में हमको इंटरनेट से वो चीजें अवेलेबल है, और अताउर रहमान साहब भी बाकायदा मेरे ख्याल से उसका इंतजाम उन्होंने कर रखा है। तो उसके जो तो आइडियाज के जो पेज होते हैं खास तौर से, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को कवर किया जाता है, और एडिटोरियल होता है। एडिटोरियल में कोई ऐसे लिखने वाले को वो लोग जो तो जगह ही नहीं देते हैं, उसमें लिखने वाला अपने अपने शोबे की इंतहाई मुमताज और मोहतरम शख्सियत होती है, और उनकी लिखी हुई एक एक बात जो तो दलीलों के साथ होती है, रेफरेंसेस के साथ होती है, और हर किसी लिखने वाले का जो अप्रोच होता है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही तामीरी होता है।
यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस के इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक तरह से हम लोग जो बचपन से जनरल नॉलेज के नाम पर जिस टाइप की मालूमात आज तक पढ़ते और देखते आए, ऐसे किसी क्वेश्चन को उसमें कोई गुजर तक नहीं होता कि कहाँ पे कौन सी चीज कितनी बड़ी है, कौन सा ब्रिज कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी मतलब नहीं कि कहाँ पे कैसा धमाका हुआ और ये हुआ और वो हुआ। हर चीज मुल्क और नेशनल लेवल के हिसाब से और बैनुल अक़वामी तौर पर देखा जाए तो वहां पे तामीरी बात ही होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो काफी तफसीलात है। इंशाअल्लाह किसी सब्जेक्ट के तहत जब इस बात का तज़किरा आएगा तो हम लोग उसको वहां पे जो हर तरीके से जो उसको समझ सकते हैं कि पहला पेपर किस तरह का होता है, दूसरा पेपर कैसा होता है, और फिर मेन एग्जाम में जो 9 पेपर होते हैं तो हर पेपर की तफसीलात, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो उर्दू का हम लोग जो फायदा किस तरह से उठा सकते हैं, ये इसकी एक अलग तफसीलात है। फिर जब इंटरपर्सनल स्किल के ताल्लुक से या वाइवा जिसको हम लोग कहते हैं कि वहां पर जो अपनी पर्सनैलिटी का जो टेस्ट होता है तो वहां पे किस tariके से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, उसकी भी एक अलग तफसीलात है। बहरहाल मेरा कहना यही है कि आपने जो इस तरह का इतना गजब का काबिल तारीफ इंतहाई मुनफरिद जो कदम उठाया है, इसके लिए मैं जितना भी ज्यादा आपको मुबारकबाद पेश करूं कम ही है। बस इसमें यही है, खास तौर पे असातिज़ा से मेरी गुजारिश है, तमाम मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात से और तलबा से, कि जब कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को करने के लिए जब बेड़ा उठा लेता है तो यहाँ पे सिर्फ उसका ज़हीन होना काफी नहीं होता है। पहली चीज, ज़हीन होना काफी नहीं होता है। अपनी ज़हानत को इंतहाई नज़्म ज़ब्त से प्रॉपर चैनल के जरिए, सही रहनुमाई के जरिए, एक अच्छे टाइम टेबल के जरिए जो तो उसको पर रोजाना अमल करना होता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें अनसर्टेन होती है, गैर यकीनी सूरत हाल बाज़ मरतबा पैदा होती है। हमें अपनी चीजों को किस तरीके से अपने टाइम टेबल के अंदर कैसी लचक रखना चाहिए, उन चीजों का भी खास तौर से गौर करते हुए अपने टाइम टेबल को डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है। क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं? कुछ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई तो अपने टाइम टेबल में कितनी लचक है। कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि मैं 14 घंटा स्टडी करता हूं या करती हूं, या 12 घंटा या 16 घंटा, तो मैं ये सोचता हूं कि शायद वो लोग निर्लीक पे होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो फितरी तकाजे हैं, हम लोग घर में होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, या अगर कोई मैरिड लाइफ में है तो उसके अपने बीवी बच्चे हैं, या अगर कोई जॉब पर है तो उसके सारे तकाजे हैं, हवाइजें जरूरियां हैं, तो इसमें भी हमारा टाइम जाता है। खास तौर से 8 घंटे की एक आइडियल नींद बिना खलल के वो इंतहाई लाजमी चीज है। तो आप बच्चों को ये चीजें बताइए कि उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो रखें, लेकिन उसको इतना ज्यादा भी हावी ना कर लें कि हम लोग अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने में किसी वजह से जो तो कम पड़ जाए। और खास तौर से हमारा अपना जो मुस्लिम माशरा है, यहाँ पे निगेटिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। निगेटिविटी के ताल्लुक से ये कहूंगा कि जब कोई इस तरह के एग्जाम का या और कोई मुनफरिद काम करने के लिए सोचता है तो हमारे ही अपने लोग सबसे पहले जो तो उसको डिस्करेज करते हैं। सबसे पहले कि ये तो बहुत मुश्किल है, इसको क्वालिफाई करना या इस मंजिल तक पहुंचना, ये तो जो हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन सारे वायरस के ताल्लुक से एंटी वायरस के लिए मुझे पूरा यकीन है कि नूर एकेडमी के जरिए जो इजरा अभी यहाँ पे चैनल का आएगा, उसमें जो मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, या उसके अलावा भी विवेक बिंद्रा के लेक्चर्स को आप देखिए, शिव खेड़ा के लेक्चर्स को आप देखिए, रॉबिन शर्मा के लेक्चर्स को आप देखिए, संदीप महेश्वरी के लेक्चर्स को आप देखिए, तो इसमें हमारे बच्चे और हम खुद भी कहीं ना कहीं डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस की वजह से, जॉब का स्ट्रेस है, फैमिली मैटर्स है, फिजिकल कुछ तकाजे हैं, बीमारी आरामी है, तो कहीं ना कहीं हम भी लोग स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो मैंने जिन लोगों का तस्करा किया, उनकी न सिर्फ मोटिवेशनल जो टिप्स अवेलेबल है इंटरनेट पर, बल्कि इनकी बुक्स भी है जो हमें जो तो हमेशा मोटिवेट करने में मददगार साबित होगी। और सबसे बढ़िया जो चीज है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अपने बंदों के गुमान के साथ है। हम जैसा गुमान करेंगे हमें वैसा मिलेगा। हम जब कभी स्टडी के ताल्लुक से बैठे तो हम अच्छा गुमान करते हुए बैठे और इम्कानात की रोशनी में अपना 100% दें, फिर उसके बाद तो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तोहफे में यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमेंगी, यकीनन। बस मेरा यही बोलना है कि इंशाअल्लाह, क्योंकि मुकर्ररीन ज्यादा है, वक्त कम है, बातें बहुत कुछ करना था। अगर इस टॉपिक पर हम बात करें तो 1.5 से 2 घंटा, 1-2 ब्रेक लेके आराम से जा सकता है। मैं यही कहूंगा कि अताउर रहमान नूरी साहब, उनके रुफ़क़ाए-कार और खास तौर से उनके सरपरस्त हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के जिम्मेदारान, आप तमाम लोगों को नेक ख्वाहिशात। अल्लाह रब्बुल आलमीन
آپ تمام ہی لوگوں میں اور خاص طور سے عطاء الرحمن نوری صاحب کے عزائم کو مزید بلند کریں، ہمیں جو ہے کہ نظر بد سے محفوظ رکھیں، لوگوں کی نگیٹیوٹی سے ہماری حفاظت ہو۔ بس نیک خواہشات کے ساتھ میں اپنے ان 2 لفظوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ عمران جمیل صاحب UPSC اور دیگر متفرقات پر اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ اس کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، بالکل سچ بات ہے۔ یہ میں ایک جملہ اس میں بڑھا رہا ہوں کہ اس کا تعلق غربت سے بھی نہیں ہے۔ 2016 کا جب رزلٹ آیا یونین پبلک سروس کمیشن کا، تو پورے ملک سے 19 مسلم کینڈیڈیٹ پاس ہوئے تھے۔ اس میں سے 4 لوگوں کی مطلب میں نے انٹرویوز کیے ان کے فون پہ۔ ایک کشمیر کا لڑکا تھا، ایک بلال محی الدین نام ہے ان کا، فرسٹ اٹیمپٹ میں انہوں نے پاس کیا ہے۔ عمر ان کی 32 ہو چکی تھی۔ اگر وہ 33 سال کے ہوتے تو اس امتحان میں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں انہوں نے سب کلیئر کر لیا۔ آل انڈیا جب رزلٹ آیا تو 7واں نمبر تھا ان کا۔ اس کے بعد ایک طالبہ تھی کرناٹک کے جو راجدھانی ہے، یہ شہر بڑا مشہور شہر ہے بنگلور۔ بنگلور کا ایک سلم ایریا ہے، جہاں سلم ایریا کی بات آئے تو وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ صرف وہ مسلمان رہتے ہوں گے۔ اسی سلم ایریا کے ایک تنگ راستے پہ، جہاں چاروں طرف راستہ 2 سمت ہوتا ہے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، لیکن ہمارے محلے کے راستے چاروں جانب ہوتے ہیں، شمال جنوب مشرق مغرب سب چاروں جانب انکروچمنٹ ہے۔ اس انکروچمنٹ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا الیکٹریشین کا کھوکا ہے جو دن بھر بیٹھ کے لوگوں کے پنکھے بناتا ہے، واٹر پمپ بگڑ جائے وہ بناتا ہے، ٹیوب لائٹ خراب ہو جائے وہ چینج کر دیتا ہے۔ اس کی لڑکی ہے، ان کا نام ہے جمال محمد، ان کی لڑکی ہے جبی فاطمہ، 24 سے 25 سال عمر ہوگی۔ اس لڑکی نے بھی 2016 میں امتحان کامیاب کیا۔ یہ دونوں ایسے تھے جن کا تعلق ایسے گھرانوں سے ہے جہاں معاشی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ مضبوطی نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ علم میں قدرت بھی ہے، دولت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے۔ علم میں قدرت بھی ہے، دولت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ